Good morning, friends. So this is my next video on the topic, the particular business risk, and what are the causes of business risk and what are the types of business risk. As in the previous video, we have already given a definition of business risk, we have understood, and what was the nature of business risk. So today, just to give a gist of that, business के साथ में risk associated है, as we have already gone through the previous videos. Today, the causes of businesses, business के साथ में risk associate कौन कौन से causes, कौन कौन से ऐसे factors हैं जिसके कारण वो होता है उसके साथ में associated. So there are the four basically the causes of that. The first basic cause of that is natural causes. Business के साथ में natural causes बहुत सारे associated हैं. It can be like drought, it can be famine, it can be like earthquakes. That thing which is not in the control of the business, से business के हाथ में controllable factor नहीं रहता, business इसके हिसाब से अपने आप को mold करता है. That need to be molded. For example, floods, famines and all that came. Earthquakes came, tsunamis was there, etc. Many multiple factors of natural things which have occurred in the world. तो उसके कारण से business hamper हुआ है, वो risk उसके साथ में है, and business need to adapt according to that. हम उसको control नहीं कर सकते, we cannot bind them, we need to adapt them. So this is a risk which is associated with the business. For example, no control over it, floods, famines, droughts, earthquake, which brings heavy losses to the business. पहली चीज, heavy losses, ये बहुत ज़्यादा compulsory है. बिकॉज इनके आने से बिजनेस काफी देर तक बंद हो सकता है या फिर रुक सकता है. द सेकेंड इज ह्यूमन कॉजेस. ह्यूमन बीइंग, द एसेट्स आल्सो क्रिएट कॉजेस टू द कंपनी और टू द बिजनेस. वो कैसे? फॉर एग्जांपल, इफ ह्यूमन बीइंग्स गो फॉर अ स्ट्राइक, द एम्प्लॉयज, द वर्कर, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो स्ट्राइक्स पे चले गए. मिस हैंडलिंग ऑफ द मशीन्स को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, मिस हैंडल किया, मशीन्स खराब हो गई, ह्यूमन बीइंग ने किया है. The secrets of the company which is known to the employee, जो employee को खुद को पता होता है, वो किसी competitor को जाके दे दे business के, तो वो क्या कर रहा है, हमारे business को deploy कर रहा है, which means that is being hampering the business. And some other things which are being lost due to human beings or employees of the organization, जो human beings करता है. Dishonesty भी उसमें आती है, दो friends या partners आपस में business किया, एक partner ने dishonesty करनी है, so that can be like dishonesty, strikes, riots, mishandling of machines and carelessness, secrets given to the competitor. These are some of the examples of human causes. The third point is economic. Economic मतलब कि वो causes जो बाहर environment में economic factor, monetary के कारण changes हो रहे हैं जो सारे के सारे, which is also not in the control of our hand, but that can be a losses to the business also. Like chances of losses due to change in market condition. Market का condition ही बदल गया. Market में बहुत सारी चीजें हम जो सोचे थे वैसा नहीं हुआ, condition बदल गया है. For example, customers का टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल गई है. जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो लोगों को अब वो पसंद नहीं आ रहा. द टेस्ट हैज बीन चेंज्ड. आई एम इन द वेजिटेरियन मार्केट एंड पीपल आर प्रेफरिंग द नॉन वेजिटेरियन. तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदल गए हैं. कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है. लाइक इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया. मार्केट कंडीशंस कई कंपनीज के लिए आपस में क्रंच हो गए. ऑटोमोबाइल्स कंपनीज क्रंच हो गई आपस में, व्हिच मींस जहां पे कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है तो दूसरी कंपनी को कुछ ना कुछ रिस्क हुआ है किसी के आने से. डिमांड बदल गई है. डीडी इट मींस डिमांड. मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में. माइट बी द पीपल हैव चेंज्ड, शिफ्टेड टू समबडी एल्स, सम अदर टेस्ट. लोगों ने कोई और प्रोडक्ट परचेज करना शुरू कर दिया तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो गई है. प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहता है. गोल्ड के प्राइसेस फ्लक्चुएशन होने से मार्केट कंडीशन, जब प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड क्या हो जाती है, नेचुरली थोड़ी कम हो जाती है. तो एक रिस्क है बिजनेस के लिए. नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज. गवर्नमेंट कुछ नया रूल्स रेगुलेशंस ले आई हैं जिस कारण से मार्केट के अंदर बिजनेस वालों के लिए क्या हो गया, रिस्कफुल फैक्टर हो गया. फॉर एग्जांपल, टैक्सेशन पॉलिसीज बदल जाना. टैक्सेशन कैसे? पहले वैल्यू एडेड सिस्टम था, वैट का सिस्टम था, जीएसटी आया, थोड़ा सा क्रंच आया बिजनेस के अंदर. दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक कॉजेस. पॉलिसीज बदलना, इंटरेस्ट रेट बदलना, बैंक का सिस्टम बदल जाना, व्हिच मींस दीस आर नॉट इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, दिस आर द मार्केट कंडीशन, जो मार्केट की कंडीशन के ऊपर बेस्ड है. फोर्थ इज द फिजिकल कॉजेस. फिजिकल कॉजेस होते हैं वो कॉजेस जो एसेट्स को प्रॉब्लम देते हैं. दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द एसेट्स. इट कैन बी लाइक मशीन्स, इट कैन बी लाइक ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. सो एसेट्स कैसे? व्हिच रिजल्ट्स इन डैमेज ऑफ द एसेट्स, जो एसेट्स को डैमेज क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, चेंज इन द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बदली, मार्केट के अंदर टाइपराइटर से हम कंप्यूटर्स पे शिफ्ट हो गए. पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होगी हमारे पास में, व्हिच हैज बीकम ऑब्सोलीट, आउटडेटेड. नई के ऊपर गए तो पुराने वाली क्या होगी, डैमेज, व्हिच मींस वी आर नॉट यूजिंग दैट, दैट इज ऑब्सोलीट.
सेकेंड इज मैकेनिकल फेलियर, मशीन्स चलते चलते फेल हो गई, चल नहीं रही है। द थिंग्स व्हिच हैव बीन हैम्पर्ड, जो पुरानी हो गई है वो नहीं चलेंगी। एक्सीडेंट ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का एक्सीडेंट हो गया, एम्प्लॉयज इज आल्सो एसेट्स आई टोल्ड यू। द बर्स्टिंग ऑफ द बॉयलर, बॉयलर चलता चलता बर्स्ट आउट हो गया, फट गया, कोई भी चीज व्हिच हैव बीन एक्सीडेंटल इन दिस इज नोन एज द फिजिकल कॉजेस। सो दीस वर द फोर कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। The next point is types of businesses. So this is also of the four types. The first one is insurable risk, which means insurable risk वो risk है जिसको हम recover कर सकते हैं। कोई भी losses हुआ that has been insured, उसको हम recover करेंगे, back to the normal position आ सकते हैं, but वो losses exactly पूरा नहीं होगा, but आप उस losses को cover up कैसे करेंगे? We need to pay a premium amount, ईयर का प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर कल को लॉस हुआ तो हमें कंपनसेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल, वी हैव परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ 10 लाख रुपीस, परचेज किया और उसके बाद क्या होगा, मशीन चलते चलते इट हैज बिकम एन एक्सीडेंटल, मशीन खराब होगी, स्टॉप वर्किंग, उसका इंश्योरेंस कराया था। अब उसका एट प्रेजेंट वैल्यू डेप्रिसिएशन कट करके जो कंपनसेशन मिलेगा दैट विल बी टेकन बैक, वो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू पे प्रीमियम अमाउंट टू द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को कुछ मिनिमम प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है सो दैट द लॉस कैन बी रिकवर्ड। इसलिए बोला है द रिस्क व्हिच कैन बी रिकवर्ड, रिकवर करने के लिए है। सेकंड, हमें प्रीमियम पे करना है, नॉमिनल अमाउंट ईयरली पे करना है। कंपनसेशन कैन बी गिवन, कंपनसेशन जो हमारा लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाएगा हमारा। And what are the basically two main areas of that? Natural and physical causes are in the insurable. Natural which means this one, and physical causes which one? The fourth one. ये दोनों causes इसके अंदर आते हैं। Let us take example fire insurance. Fire insurance इसका best example है। Second is non-insurable risk, जिसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, तो लॉस नीड टू बी परफेक्टली, लॉस होगा ही होगा, उसके अंदर कोई हमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा, हमें इसके अंदर लॉसेस बियर अप करने ही पड़ेंगे, व्हिच कैन बी लाइक नो प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्क। ये एक ऐसा इंश्योरेबल है जिसका कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लॉसेस कंपल्सरी रहेगा अगर हुआ तो। सेकंड, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन रिस्क। इकोनॉमिक मतलब कि हमारे लिए जो मार्केट कंडीशन का चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन जो कोई भी डिसऑनेस्टी करता है, इसके लिए कोई भी कंपनी हमें लॉसेस बियर अप करने के लिए कोई कंपनसेशन नहीं देगा, दैट नीड टू बी कवर्ड अप बाय ओन सेल्फ, हमारे खुद को। सो नो कंपनसेशन फॉर द चेंज इन डिमांड। एग्जांपल, मार्केट में डिमांड बदल गई, कोई कंपनसेशन नहीं है, हमारा ही लॉस है। एम्प्लॉयज ने डिसऑनेस्टी की, हमारा ही लॉस है, व्हिच मींस नो कंपनसेशन। थर्ड पॉइंट इज स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव मींस इट इज अ काइंड ऑफ रिस्क व्हिच कैन ब्रिंग प्रॉफिट और व्हिच कैन ब्रिंग लॉसेस आल्सो, कुछ भी हो सकता है स्पेक्युलेटिव, इट कैन बी ऑन द ट्विस्ट एंड टर्न। फॉर एग्जांपल, चेंज इन द डिमांड, किसी और की डिमांड बदलने से मेरा प्रॉफिट हो गया, माइट बी दूसरे के पास में टी का बिजनेस था, वो नहीं चल रहा, लोगों ने कॉफी प्रेफर करनी शुरू कर दी, तो मेरा बिजनेस बढ़ गया। प्राइस का फ्लक्चुएशन, प्राइस के चेंजेस के कारण मेरा बिजनेस बढ़ गया। फैशन बदल गया है, फैशन के कारण बिजनेस ट्रेंड अप हो गया है। पहले नॉर्मल डेनिम्स चलती थी, आजकल कटआउट्स चलती हैं, व्हिच मींस फैशन के कारण बिजनेस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। गोल्ड के प्राइसेस कम हुए तो गोल्ड की डिमांड बढ़ गई, दैट इज नोन एज द कोई भी स्पेक्युलेटिव, प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेस को, लॉसेस भी हो सकता है। एंड द फोर्थ एलिमेंट इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब इट इज अ सिचुएशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, लॉस होगा या नहीं लॉस होगा, बट द लॉस विल बी कंसर्न्ड अबाउट, द वर्ड इज लॉस और नो लॉस, होगा या नहीं होगा। इट कैन बी लाइक एग्जांपल इज फायर, आग लग सकती है या नहीं लग सकती, थेफ्ट हो सकता है नहीं हो सकता, स्ट्राइक हो सकती है नहीं हो सकती, which means possibility is there, possibility of loss or no loss. So these were the four types of businesses, and today we have covered the basically the causes of businesses. So this was my video on the particular businesses. Thank you so much for watching.